Now next we will understand the complexity of Huffman algorithm. So here we will write the complexity, time and space complexity, time complexity and space complexity. So for creating tree, the complexity would be order of n log n. Why this is so? Roughly we will understand here. Because every time what we are doing, we are merging nodes or we are merging the characters. So roughly in log n times, like while searching in binary search tree. So generally in case of any tree, the complexity comes out to be log n, order of log n, some multiplication also. So while creating nodes and merging, the complexity would come to be n log n, and space complexity would be order of n, where n is the number of unique characters, number of unique characters in the text. And for encoding, the complexity would be order of n, time complexity would be order of n, and for decoding also. Why it is linear? Because for each character we have to just encode, fixed coding. So for representing n character, encoding or decoding, complexity would be order of n, and space complexity would be of order of 1. Because order of 1, because we have to just store the message while decoding or encoding. So for that we require fixed time, that is order of 1. I hope you will understand the Huffman algorithm and the encoding technique. So question may come in two ways. Either first text will be given or frequency table will be given. You will be asked to find the code. Next part, you may be asked to decode the encode the text. This is first part of the question. And second may come that encoded string, that is binary string, encoded binary string is given, and you may be asked to decode. The binary string. You will be asked to decode the binary string and find original text. Find original text. So if it becomes it feels difficult, then we may revisit and draw the tree again and in one go. तो हम इसको एक बार ज़रा और रिविजिट करेंगे और इसका सेम प्रॉब्लम के लिए हम हफमैन ट्री ड्रॉ करेंगे once more. So here you will see how this is simple. So यहाँ पे हम एक बार फ्रीक्वेंसी टेबल लिखेंगे. A7 B3 C6 E10 F2 और G3. तो इसको कैसे सॉल्व करना है?
हमें इसमें से सबसे मिनिमम वाले देखना है। तो मिनिमम तो एक एफ है और दूसरा बी और जी में से कोई एक लेना है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है कि उस कैरेक्टर को रखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगभग बीचों बीच बनाइए। F2 बना लिया हमने और C6 बना लिया। C6 का बन गया और इन दोनों को हम क्या करेंगे, 6 2 8 यहाँ पे हो गई इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों को नहीं सॉरी ये C इज हमने यहाँ पे क्या किया है, F को ले लिया और F के बाद B लेना है। यहाँ पे B इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है क्योंकि मिनिमम वाले लेने हैं। तो यहाँ पे हमने B और B ले लिया और F ले लिया, इनका ट्री बना लिया और इनको यहाँ से टेबल से काट दिया। अब हमारे पास ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। स्पेस हियर वी विल कट एंड यहाँ पे हम थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम इसको, टेबल गायब हो जाएंगे। तो हम इसको बना लेते हैं F2 एंड B3 इसका बना लिया और दोनों का सम हो गया हमारे पास 5। इन दोनों को हमने ऑलरेडी कट कर दिया था। कट करने के बाद अब हम इसको इंक्लूड करते हुए देखेंगे कि किसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये 5 है और G का 3 है, तो G का हमने यहाँ पे रख लिया G3 और इन दोनों को मिला के हमारे पास 8 फ्रीक्वेंसी आ गई। तो G को कट कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे 6 7 6 10 और 8, इन सब में सबसे फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, 6 और 7। तो 6 और 7 का हमने बना लिया A7 और C6 का एक ट्री बना लिया और ये हो गया 13। तो अब ये बन गया। तो हमने इसको और इसको जिसका जिसका बन जाए उसका हमने काटना है। तो हमने ये बना लिया C और A का। अब हमारे पास क्या क्या बचा, E बचा जिसका 10 है, 8 है और 13 है। तो अब हमें देखना है कि 10 8 13 में छोटे फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं, 8 और 10। 8 लेस है तो इसका मतलब 8 को हमें लेफ्ट साइड में रखना है और इसका मतलब E10 हमारा राइट साइड में रहेगा। तो E10 हमारा राइट साइड में हो गया और 10 और 8 हमारा मिला के हो गया 18। अब हमने E को बना लिया है, E बन गया। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, 13 और 18, ये दोनों बच रहे हैं। तो 13 और 18 को ऐड करके 13 लेस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, नहीं तो हमें एक बार दोबारा इसको ड्रॉ करना पड़ता। तो अभी हमें जो है 13 18 13। तो अगर आपको डायरेक्टली कोड फाइंड आउट करना है, एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं। और इफ़ यू हैव टू सॉल्व इट इन द एग्ज़ाम, सो यू मे नीड टू शो द स्टेप्स। Now I hope you will understand the Huffman tree very well from this lecture. बस इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है, 1-2 एग्जाम्पल्स। थैंक यू।